So this question has given a mirror which is moving in the positive x and an object is moving making 30-degree angle with the x-axis, negative x-axis. Then we have to find the velocity of image with respect to mirror, object and ground. And here I have calculated the velocity of image with respect to the ground. Okay. So for that I have written the absolute values given. Absolute values are velocity of object with respect to ground this much, velocity of mirror with respect to ground is this much. Now we are finding the velocity of image. If I write it for the with respect to ground, then it will also have two components. One will be perpendicular to the mirror, another will be parallel with the mirror. So for perpendicular component, yesterday we have derived twice of vmx minus v naught x. X is nothing but showing the with respect to ground. So I have simply calculated the value of perpendicular component of velocity, which is 6 plus 5 root 3 I cap. Then for parallel component, we know the parallel component does not change, so it will be what, minus 5j. And since the mirror is not moving in the y direction, so the velocity of object image will be same as the velocity of object in y direction. So you can see the velocity of image with respect to ground is this. इससे आप मैच कर लेना अपने आंसर को। और बाकी के दो पार्ट के लिए मैं हिंट कर देता हूं। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे दूसरे दूसरे पार्ट को। मान लो मैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर बोल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर मुझे फाइंड करना हो वेलोसिटी ऑफ इमेज को, वेट अ सेकंड, लैपटॉप हो रहा तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर मेरे को लिखना है तो हमें सिंपली पता है सिंपल मैकेनिक्स से वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तो आपने पीछे पेज में फाइंड किया ही है। 6 प्लस व्हाट 5 अंडर रूट 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 3 आई कैप। सो आंसर यू विल गेट इट 3 प्लस 5 रूट 3 I cap minus 5j cap. And for with respect to object you have to do what, velocity of image with respect to our object, which is nothing but velocity of image with respect to ground minus velocity of object with respect to ground. So this one will be having answer. I will directly write the answer 10 root 3 plus 6 I cap. तो आप देख लेना आपके कौन कौन से आंसर सही है। अगर मैं आपके आंसर देखूं, so now I would like to discuss one more new concept. Now please don't text, I will not read. The deviation produced by mirror. Next important, मैंने जो सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन के उसको आप देख के समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है? और घबराना नहीं कि कुछ बड़ा कर दिया, कुछ नहीं है, वो आसान आसान से काम किए, बच्चों वाला काम है। Deviation produced by mirror. Put the heading. Deviation produced by mirror. Okay. सीधी सी बात है, आपके पास मान लो ये कोई भी फर्स्ट केस देख लेते हैं। इस फर्स्ट की एक कोई प्लेन मिरर है। लैपटॉप मेरा ना बहुत परेशान कर रहा है। डेविएशन प्रोड्यूस इससे आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, like first case
इफ आई हैव अ प्लेन मिरर, तो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि ये रे इंसिडेंट हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे ये रे अगर इंसिडेंट होती है ये मान लो, तो नॉर्मल से ये कुछ एंगल बना रहा होगा I, suppose this is making angle I, so it will get reflected by making R, and we know from law of reflection angle I equals to angle R. So what amount of deviation is there? डेविएशन कितना आया इसमें? डेविएशन को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अगर ये रे ऐसे ही निकल जाती तो एंगल कितना हो जाता है 180 डिग्री का, है ना, 0 डिग्री डेविएशन। लेकिन ये ऐसे ही ना निकल के मुड़ गया, कितने से मुड़ गया ये देखो, डेविएशन कितने से आ गया ये डेविएशन। सो दिस डेविएशन यू विल राइट व्हाट, पाई माइनस आई प्लस आर, ये डेविएशन है, दिस इज द डेविएशन। और आई और आर अगर सेम है तो आप इस डेविएशन को कितना लिख सकते हो, पाई माइनस प्राइस ऑफ आई। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक। दिस इज कॉल्ड द डेविएशन ऑफ द मिरर, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे बाय द मिरर। इसमें आप फर्दर नोट लिखो, कुछ एक प्लॉट में यहाँ ड्रॉ करूंगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, then the deviation will be maximum, which will be pi minus price of 0, which is pi. And if the angle of incidence is 90 degree, angle of incidence is 90 degree, then the deviation produced will be minimum, which will be pi minus price of pi by 2, which is equals to 0. Now if you draw a graph between deviation and angle of incidence, you will find a straight line like this, where it is delta max, maximum deviation, and here it is pi by 2 angle of incidence. So ये plot पूछा गया है, पूछे जाएंगे आगे, what is the plot or relation between the deviation and angle of incidence. Now come to the second case. In second case, आपने देखा पिछले केस में क्या है कि सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हमने डेविएशन फाइंड किया। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गए और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है तो आप क्या करोगे, नेट डेविएशन फाइंड करोगे, और क्या करना होगा आपको, जितने रिफ्लेक्शन हो रहे हैं हर रिफ्लेक्शन का इंडिविजुअल डेविएशन कैलकुलेट करके ऐड करना है, you will get the net deviation. Okay, this is net deviation is summation of sum of all individual deviations, individual deviations. आप यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक्चुअली क्या होता है, आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो आप उम्मीद करते हो कि डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर का कुछ आ जाए, 1/u + 1/v का फॉर्मूला पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं, ये कोटा स्टाइल है, and I don't think any other places follow this style. देखिए क्वेश्चन लिखिए, टू प्लेन मिरर्स आर, आपको पहले ही मैं इतना कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि आगे की चीजें आप खुद भी पढ़ सको। टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other. क्वेश्चन की थ्योरी मैं पूरी लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपको खुद से समझना है। inclined to each other, okay, such that
such that a ray incident on first mirror, a ray of light incident on first mirror and parallel to second mirror and parallel to second mirror reflected back parallel to second mirror and reflected, एक सेकंड रुकना, is reflected from second mirror, from ही समझना इसको, from second mirror parallel to first mirror, parallel to first mirror. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। okay. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड फर्स्ट पार्ट, एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन द मिरर, सॉल्व करो आप। दूसरा, फाइंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड, टोटल डेविएशन produced in incident ray, in incident ray. सॉल्व करिए इसको। I will give you. So if we have two plane mirror taken inclined at an angle theta, तो क्या बोला कि आप किसी भी, पहले मैं इसको फर्स्ट मिरर मान लेता हूँ और इसके बोला कि आप रे को इंसिडेंट कराइए पैरेलल टू द सेकंड मिरर। पैरेलल टू द सेकंड मिरर मींस दिस एंगल विल बिकम थीटा। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ इधर को चला जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो चुका है। ओके, और फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, फाइनली आपको क्या बोला गया, जब दूसरे वाले मिरर से रिफ्लेक्शन होगा फाइनल, तो वो पहले वाले के पैरेलल हो जाएगा, ऐसा करके चला जाएगा। अब आप थ्योरी पढ़ के देख, अगर ये ऐसा गया तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो गया, आप देखो इंक्लिनेशन थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। इसका मतलब यहाँ पे एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रायंगल बन गया। वो ए बी को अगर देखें तो ट्रायंगल ओ ए बी में आप क्या देख सकते हो कि सारे एंगल का सम क्या है, इंटरनल एंगल का 3 थीटा, जो कि होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री। एक आंसर तो आ गया एक पार्ट। ठीक, अब ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो आप देखना कि ये वाला एंगल कितना। एक बार मैं इस डायग्राम को और बना लेता हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको भी ख्याल रहे कि किस तरीके से लिखना बेहतर रहेगा। I will take this diagram again. यहाँ पे दूसरे पेज पे लेता हूँ। पहला पार्ट का तो आंसर आ गया, दूसरे पार्ट को समझ लो, इसको समझना, फिर मैं कल और सवाल कराऊंगा इसके लिए। थीटा हमने फाइंड कर लिया कितना, 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस इज 60, दिस वन इज 60, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा जूम करके देखो,
ये वाला एंगल आ चुका है 60 डिग्री, तो ये कितना 30 डिग्री। तो क्या मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पहला वाला 30 डिग्री बोलूं? तो पॉइंट ए से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो डेविएशन देखो किधर को हो रहा है, रे इधर जाना था लेकिन ये मुड़ गया, कितने से मुड़ गया, इधर को मुड़ गया। तो पहला डेविएशन क्या लिखते हैं हम, डेविएशन हमें पता है पाई माइनस 2 आई, आई क्या है मेरे पास 30 डिग्री, तो यहाँ से 180 माइनस 60 इज व्हाट 120 डिग्री। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा ये कैसा डेविएशन है, तो क्लॉकवाइज डेविएशन, डेविएशन ऑफ क्लॉकवाइज, लाइक इधर को जा रही थी रे लेकिन यहाँ पे मुड़ना पड़ गया इसको बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब आप देखो फिर से एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पर भी इसने एक्सपीरियंस किया होगा डेविएशन। अब ये थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बी पॉइंट पे क्या आ गया फिर से डेविएशन पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, ये भी आया 120 डिग्री। अब देखना होगा हमें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जाना था इसको इस डायरेक्शन में लेकिन ये मुड़ जाता है, मुड़ गया इधर को रिफ्लेक्शन की वजह से, ये भी क्लॉकवाइज में। अभी आपको मैंने एक केस बताया ना कि डेविएशन नेट डेविएशन अगर आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे कि दोनों के दोनों डेविएशन को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 240 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, इसको मैं एक बार आप चाहो तो एक्सप्लेन भी कर दूं फिर से, बट आई डोंट थिंक की जरूरत है। अब देखना यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे केसेस पॉसिबल हैं कि पहला रिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर आपको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो बड़ा एंगल होगा जैसे कि ये मान लो 120 डिग्री क्लॉकवाइज होता, ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता, तो आंसर अपना क्या होता 60 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पर तो आंसर आपको क्लियर है। ओके, सो आप इन सबको समझना, प्रैक्टिस करना और डेली का डेली पढ़ना जरूर, अदरवाइज आपका इतना ज्यादा हो जाएगा ना एक वीक के अंदर ये ऑप्टिक्स कि आप फिर सर पकड़ के बैठे रहो कि यार मैंने साथ साथ नहीं किया। You will have to do these things along with your classes. Okay.